عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ مضمون سائنس، جماعت ہفتم، سبق نمبر 1، جانداروں کی دنیا، توافق اور جماعت بندی، اس تعلق سے معلومات حاصل کریں گے۔ ذرا یاد کیجئے، کن کن خصوصیات سے جانداروں کا تنوع معلوم ہوتا ہے۔ زمین پر کئی قسم کے نباتات موجود ہیں۔ چند نباتات میں مختلف رنگ کے پھول کھلتے ہیں۔ کچھ نباتات پانی میں پائی جاتی ہے تو کچھ پانی سے محروم ریگستان میں اگتی ہے۔ کچھ نباتات خوردبین کے بغیر نظر نہیں آتے، جبکہ کچھ بہت بڑی ہوتی ہے۔ کچھ نباتات برفانی علاقوں میں ہی پائی جاتی ہے۔ نباتات کی طرح حیوانات میں بھی تنوع پایا جاتا ہے۔ کچھ یک خلوی تو کچھ کثیر خلوی، کچھ فکری تو کچھ غیر فکری ہوتے ہیں۔ اسی طرح آبی، بری، جل تھلیے، فضائی، رینگنے والے، اس طرح کئی قسم کے حیوانات سے ہماری دنیا بھری ہوئی ہے۔ ایسے ماحول کو دیکھ کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جانداروں میں اس قدر تنوع کس وجہ سے پیدا ہوگا۔ توافق: ہر جاندار جس ماحول میں رہتا ہے اس سے مطابقت قائم کرنے کے لیے اس کے جسمانی اعضاء اور زندہ رہنے کے طریقے میں وقت کے ساتھ ساتھ ہونے والی تبدیلی کو توافق کہتے ہیں۔ آبی نباتات میں توافق: آپ کے علاقے میں ندی، نالے، تالاب، جھیل جیسے آبی ذخائر کا مشاہدہ کیجیے۔ بری اور آبی نباتات میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ آبی ذخائر میں پائی جانے والی نباتات میں چند نباتات کی جڑیں تہ نشین مٹی میں مضبوطی سے گڑی ہوتی ہے۔ ان کے تنے پانی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ پتے اور پھول پانی پر تیرتے رہتے ہیں۔ کچھ نباتات جڑوں کے ساتھ پانی پر تیرتی ہے۔ پانی کی تہ میں دیکھنے پر وہاں بھی کچھ نباتات نظر آتی ہے۔ کنول، آبی سنبل جیسی نباتات کے ڈنٹل نرم، کھوکھلے، لچکدار ہوتے ہیں۔ اکثر آبی نباتات کے پتوں اور تنوں پر پتلی موم تہ پائی جاتی ہے۔ ریگستانی علاقوں کے نباتات میں توافق: ایک ناک فنی اور زیادہ پتوں والا پودا الگ الگ گملوں میں لیجیے۔ دونوں گملوں کو پودوں کو پتے کے اطراف میں ایک پلاسٹک کی تھیلی ڈھیلی باندھ کر گملوں کو صبح سے دھوپ میں رکھیے۔ کیا دونوں تھیلیوں میں پانی کی مقدار متساوی نظر آتی ہے؟ ریگستان پودوں میں پتے نہیں پائے جاتے، وہ بہت چھوٹے سوئی نما ہوتے ہیں یا کانٹوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس ساخت کی وجہ سے ان کے جسم کا پانی بہت معمولی مقدار میں بھاپ کی شکل میں خارج ہوتا ہے۔ تنا اور غذا کا ذخیرہ کرتا ہے، اس لیے وہ موٹا ہو جاتا ہے۔ پانی کی کمی کی وجہ سے تنے کی شعاعی ترکیب کا فعل انجام دینا ہوتا ہے، اس لیے وہ ہرا ہوتا ہے۔ برفانی علاقوں کے نباتات میں توافق: برفانی علاقوں کی نباتات کی ٹہنیاں نیچے جھکی ہونے سے ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ برفانی علاقوں کے اہم نباتات میں دیودار، صنوبر جیسے مخروطی درخت شامل ہیں۔ ان کی ساکھ مخروطی ہوتی ہے، ٹہنیاں نیچے جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ ان علاقوں میں خوب برف گرتی ہے اور سردی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ مخروطی ساکھ کی وجہ سے ان نباتات پر برف جمع نہیں ہوتی اور ان کی چھال موٹی ہونے کی وجہ سے وہ سردی برداشت کر پاتے ہیں۔ جنگلاتی علاقوں میں کی نباتات میں توافق: ان علاقوں میں مختلف قسم کی نباتات پائی جاتی ہے، جیسے درخت، جھاڑیاں، پودے۔ سورج کی روشنی حاصل کرنے کے لیے ان میں مقابلہ آرائی ہوتی ہے۔ سورج کی روشنی کے حصول کے لیے درختوں کی اونچائی بڑھتی ہے، ان کے سہارے بیلیں بھی اونچائی تک پہنچتی ہے۔ کچھ بیلوں کے تنوں میں کمانی کی مانند بیل ڈورے ہوتے ہیں، جو کہ تنے کا توافق ہی ہے۔ گھاس کے علاقوں کی نباتات کا توافق: گھاس کے علاقوں میں بڑے پیمانے پر چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں اور کئی قسم کے گھاس اگتی ہے۔ یہ گھاس اپنے ریشے دار جڑوں کی مدد سے زمین کی جھیج کو روکتی ہے۔ استوائی علاقوں میں پائی جانے والی گھاس بہت اونچی ہوتی ہے، اس میں شیر ببر، ہاتھی، ہرن جیسے حیوانات چھپ سکتے ہیں، لیکن سرد علاقوں کی گھاس اونچائی میں کم ہوتی ہے، اس لیے اس میں خرگوش جیسے حیوانات پائے جاتے ہیں۔ پہاڑوں کی ڈھلوانوں، سطح مرتفع اور میدانی علاقوں میں بڑے پیمانے پر چراگاہیں نظر آتی ہے۔
नबातात में ग़िज़ा के लिए तवाफ़ुक। ज़मीन पर पाई जाने वाली अक्सर नबातात खुद कफील होती है, लेकिन अमरबेल जैसी चंद नबातात गैर कफील होती है। अमरबेल का जिस्म यानी सिर्फ जर्द रेशे जैसे तने का जाला होता है। इसमें पत्ते नहीं पाए जाते, इसलिए ये ग़िज़ा नहीं तैयार कर सकती। दूसरी नबातात के तनों से ग़िज़ा हासिल करने के लिए इसमें जो चूसने वाली जड़ें पाई जाती है। ये जड़ें मेज़बान दरख्त की उरूकी और आबी नालियों तक पहुंचकर इनसे ग़िज़ा और पानी जज़्ब करती है। फफूंद में खिज़रे की गैर मौजूदगी की वजह से वो शुआई तरकीब का फ़ेल अंजाम नहीं दे सकती। रोटी, पाव जैसी निशास्ती ग़िज़ाई अशिया से ग़िज़ा हासिल करने के लिए इसमें जड़ों जैसे रेशे पाए जाते हैं। नबातात की नशोनुमा के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम की ज़रूरत होती है। जिस ज़मीन में नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ नशोनुमा पाने वाली कुछ नबातात जैसे विंग्स फ्लाई, ट्रेप, ड्रासिरा, सुराइया पौधा कीड़ों का शिकार करके नाइट्रोजन की ज़रूरत पूरी करती है। ऐसे पौधों में कीड़ों का रागी करने, उन्हें पकड़ कर रखने के लिए पत्तों या फूलों में तवाफ़ी होना हो जाता है। हैवानात में तवाफ़ुक। आपके माहौल में पाए जाने वाले और जिनसे आप वाकिफ़ हैं, इन हैवानात की फ़हरिस्त बनाइए। अब दोस्त के साथ बैठ कर इनकी बनाई हुई फ़हरिस्तों आप फ़हरिस्त में मौजूद हैवानात के तवाफ़ुक का मुवाज़ना कीजिए। ज़मीन पर और पानी में रहने वाले हैवानात के जिस्म में क्या फ़र्क नज़र आता है? बर्री हैवानात की बनिस्बत आबी हैवानात की जिल्द जिस्म की साख में तब्दीली नज़र आती है। मछलियों की जिल्द पर सफने और जिस्म पर ज़फ़ने होते हैं। जिस्म गाओदम होता है। तनफ़ुस के लिए इनके नाक की बजाय गलफड़े पाए जाते हैं। कपोटे शफाफ होते हैं। इन हैवानात के जिस्म में हवा की थैली होती है। मेंढक, बतख, कछुए के जिस्म का मुशाहिदा कीजिए। इनमें पैरों का क्या इस्तेमाल होता है? मेंढक जब पानी में होता है तो तनफ़ुस का फ़ेल किस तरह अंजाम देता है? मेंढक के पिछले लंबे पैरों का क्या इस्तेमाल है? बतख पानी में रहने के बावजूद गीली क्यों नहीं होती? मेंढक और बतख के पैरों की उंगलियों के दरमियान झिल्ली पाई जाने की वजह से इनका इस्तेमाल चप्पू की तरह होता है। बतख, मुर्गाबी जैसे परिंदों के पर और पंख पर रोगनी मादा होता है, इसलिए पानी इन पर से फिसल जाता है। मेंढक के पैरों की उंगलियों के दरमियान झिल्ली, चिकनी जिल्द और तिकोनी सर की वजह से वो आसानी से पानी में तैर सकता है। पानी और ज़मीन के नीचे हो तो जिल्द के ज़रिए सांस लेता और ज़मीन के ऊपर हो तो नाक और फेफड़ों के ज़रिए, इसलिए वो दोनों जगहों पर रह सकते हैं। जंगल और घास के इलाकों में रहने वाले हैवानात में तवाफ़ुक। जंगली कुत्ते, लोमड़ी, शेर बब्बर जैसे गोश्तखोर हैवानात के पैर मजबूत होते हैं। इन हैवानात में बड़े बड़े नाखून और नोकीले चीरने वाले दांत पाए जाते हैं। शेर के पैरों के तलवे गद्दीदार होते हैं, इसलिए शिकार को इसकी आहट महसूस नहीं होती, वो आसानी से दबोच लेता है। गोश्तखोर हैवानात में आंखों का मुकाम सर के मफरती हिस्से के सामने की जानिब होता है, जिसकी वजह से वो शिकार को दूर से देख लेते हैं। सब्ज़ीखोर हैवानात में आंखें पेशानी के नीचे और बाजू की जानिब होती है, इसलिए वो बहुत वसी इलाके को देख सकते हैं। इन्हें दुश्मन से बचाव का मौका मिलता है। सब्ज़ीखोर हैवानात के पैर मखरूती और पतले होते हैं और खुर मजबूत होते हैं, जिसकी वजह से वो छलांग लगाते हुए तेज़ी से भाग सकते हैं। ऐसे हैवानात की हरकत करने वाले छलांग लगाते हुए तेज़ी से भाग सकते हैं। ऐसे हैवानात से हरकत करने वाले लंबे कान दूर की आवाज़ सुन सकते हैं। हिरन और बारहसिंगा का रंग माहौल से मिलता जुलता है। नबातात के तनों को चबाकर खाने के लिए इनमें मजबूत दांत पाए जाते हैं। रेगिस्तान के हैवानात में तवाफ़ुक। रेगिस्तानी इलाकों में पानी की शदीद किल्लत होती है, जिसमें पानी को बहाल रखने के लिए वहाँ के हैवानात में जिल्द मोटी होती है। पैर लंबे, तलवे गद्दीदार और फैले हुए होते हैं। नाक पर जिल्द की झालर होती है। पपुटे लंबे और मोटे होते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले चूहे, सांप, मकड़ी, गिरगिट जैसे हैवानात गहरे बिल बनाकर रहते हैं।
बर्फानी इलाकों के हैवानात में तवाफुक। इंटरनेट से या कुदबी रीछ, सफ़ेद लोमड़ी, पहाड़ी बकरी, चंद लोमड़ी, साइबर याई, हिस्की कुत्ता, बर्फानी चीते की तस्वीर हासिल कीजिए। सतह इस्तेवाई जंगलात के इसी नस्ल के हैवानात की तस्वीर हासिल करके इनका मुआवजा कीजिए। बर्फानी इलाकों में रहने वाले ऊपर दिए हुए तमाम हैवानात जो आपको तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, इनकी जिल्द पर लंबे और घने बाल, सफ़ेद या रुपहली रंग की इनकी खसूसियात है। इन खसूसियात में इन हैवानात को क्या फ़ायदा होगा, देखिए आपको नज़र आ रहा है तस्वीर में। बर्फानी इलाकों के हैवानात। फ़िज़ाई हैवानात में तवाफुक। रास्ते पर दौड़ने वाली सवारियों और आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज की साख में अहम कौन सा फ़र्क है। परिंदों के जिस्म में दोनों सिरों पर घाव दुम होने की वजह से उड़ते वक्त हवा रुकावट नहीं बनती। जिस्म पर परों का गिलाफ सामने के पैरों के पंखों में तब्दील होना और खोखली हड्डियों की वजह से इनके जिस्म का हल्का होना ये तवाफुक उड़ने के लिए साजगार है। कीड़ों के जिस्म में भी घाव दुम और हल्के होते हैं। पंखों की 2 जोड़ियां और तिलियों के मानी 6 पैर जिस्म की इस किस्म की साख की वजह से कीड़े हवा में उड़ सकते हैं। इसी तरह आपने इन्हें चलते हुए भी देखा होगा। चमगादड़ के अगले पैरों की उंगलियों के दरमियान झिल्ली की मौजूदगी की वजह से ये उड़ सकती है। अपने गर्दोपेश में मौजूद मुख्तलिफ परिंदों और पतंगों का मुशाहिदा कीजिए, आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तस्वीर में भी आपको वीडियो में नज़र आ रहा है किस तरह परिंदे उड़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रेंगने वाले हैवानात में तवाफुक। दूर ही से मुशाहिदा कीजिए कि सांप और केचुआ किस तरह रेंगते हैं। रेंगते वक्त वो किन अज़ा का इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए क्या इनमें मखसूस तब्दीलियाँ नज़र आती है। इन तब्दीलियों को नोट कीजिए। छिपकली, गिरगिट, मगरमच्छ जैसे हैवानात अज़लात का मखसूस इस्तेमाल करके रेंगते हैं। इसी के साथ इनकी जिल्द, पंजे और मखसूस रंग में तवाफुक हो चुका है। जैसे छिपकली, घोड़पड़ के पंजे पतले और इनमें नाखून पाए जाते हैं। सांप की जिल्द पर सपने होते हैं। ये रेंगने वाले नबातात जो है तो इनका बहुत मुशाहिदा कीजिए, अब आपको समझ में आएगा किस तरह ये रेंगते हैं और किस तरह ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अगला पॉइंट हमारा ग़िज़ा के लिए हैवानात में तवाफुक। हैवानात की जमात बंदी सब्ज़खोर, गोश्तखोर इन 2 ग्रोह में की जा सकती है। इसलिए ऐसी मखसूस तब्दीलियाँ हो गई है जिसकी वजह से इन हैवानात में ग़िज़ा खाना आसान होता है। इस ताल्लुक़ से आप सबक जानवरों में तग़ज़िया में मज़ीद मालूम हासिल करेंगे। मेंढक, सांप, परिंदे, मच्छर, तितलियाँ अपना शिकार किस तरह हासिल करते हैं और खाते हैं, इससे मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल वगैरह पे आप देख सकते हैं। आपको नज़र आ रहा है सब्ज़ीखोर और गोश्तखोर, इसमें से कौन से हैवानात है। इंटरनेट के गूगल के ज़रिए भी आप मालूम कर सकते हैं। माहौलियाती मुशाबहत के लिए हैवानात में तवाफुक। अगला पॉइंट, मुख्तलिफ रंगों के गिरगिट और नाक तोड़ में हमें आते नज़र आते हैं। जब नबातात पर घास में या दरख्त पर तने पर होते हैं तो इनके जिस्म का रंग इतराफ़ के रंग से मुशाबा होता है। मस्कन, जुग़राफ़ी हालात के मखसूस माहौल में ज़िंदा रहना, अफज़ाइश के ज़रिए खुद की बका, ग़िज़ा का हुसूल, दुश्मन से खुद की हिफाज़त जैसे कई वजूहात की बिना पर जानवरों के अज़ा और इनके जिस्मानी अफ़आल में होने वाली तब्दीलियों को तवाफुक कहते हैं। तवाफुक फ़ौरन होने वाला अमल नहीं है, ये अमल मुसलसल जारी रहता है। हज़ारों साल हैवानात के दौरे हाजिर के हैवानात के जिस्म में नज़र आने वाली तब्दीलियों हालात के मुताबिक होने वाला तवाफुक है। डार्विन का नज़रिया इर्तिका। माहिर हयातियात चार्ल्स डार्विन ने कई किस्म के हैवानात और नबातात का मुताला करके ये नज़रिया पेश किया कि जो जानदार माहौल में ज़िंदा रहने की सलाहियत सबसे ज़्यादा रखते हैं उन्हीं के आने वाले दौर में बाकी रहने का ज़्यादा इम्कान होता है। इसको बकाए असला, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का नज़रिया भी कहते हैं। डार्विन का पहला नज़रिया है, अगर कोई जानदार किसी ऐसी खसूसियात के साथ पैदा हो जो इसके लिए फ़ायदेमंद हो और ज़िंदा रहे तो इसकी अगली नस्ल भी इसी तरह होंगी। डार्विन का दूसरा नज़रिया है, जैसे कुदरती इंतखाबात, नेचुरल सिलेक्शन का नज़रिया कहते हैं।
डार्विन एक साइंटिस्ट जो आपको सामने नज़र आ रहा है तस्वीर में, इसने ये थ्योरी पेश की। जानदारों की जमात बंदी। हमारे माहौल में पाए जाने वाले मतनू जानदार की दुनिया का एक ही वक्त मुताला करना, इन्हें बैक वक्त ज़ाहिर नशर करना मुश्किल होता है। आज तक कई साइंसदानों ने इसलिए मुख्तलिफ खसूसियात की बिना पर नबातात और हैवानात की अलहदा जमात बंदी की है। ऐसी जमात बंदी की एक जंजीर बनती है। इसकी इब्तदाई आलम हैवानात या आलम नबातात से होती है। इसके बाद जानदारों की खसूसियात में बुनियादी मुशाबहत और इख्तिलाफात के लिहाज से इनके ग्रोह तैयार होते हैं। इसी जमात को जमात बंदी का सिलसिला मुरातिब कहते हैं। सिलसिला मुरातिब आम इंसान, इस तरह इसमें जो है तो आपके सामने फेसबुक में जो है तो एक चार्ट दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है कार्ल लुईस का दवा समी तरीका। तसव्वुर कीजिए एक जमात में नसरीन या सबा नाम की 4 तालबात है। इनमें आप सिर्फ एक तालबा से मुताल्लिक़ ही बात कर रहे हो, तो दूसरों को वाज़ेह तौर पर समझ में आने के लिए आप क्या करेंगे? हम इनका पूरा नाम बोलेंगे, जैसे नाम खानदानी नाम, उसे ही 2 इसमी तरीका कहते हैं। हर जानदार को पहचानने के लिए 2 इसमी तरीके पर इन्हिसार किया जाता है। इसके मुताबिक हर जानदार को एक साइंसी नाम दिया गया है। इस नाम में 2 इस्तिलाहात है, पहली से जिन्स जाहिर होती है, दूसरी नौ जाहिर होती है। बैनुल अक़वामी उसूल तस्मी के तहत तमाम जानदारों को 2 इसमी तरीके से नाम दिए गए हैं। एक नौ के तमाम जानदारों में इतनी मुशाबहत होती है कि उनका रंग, ऊंचाई, दिन की लंबाई जैसे इख्तिलाफात हो, तब भी इनमें अफजाइश नस्ल हो सकती है। मसलन दुनिया भर की तमाम बिल्लियाँ एक ही जिस्म से ताल्लुक़ रखती है। इसी तरह हैवानात में मुर्गी, गाय, कुत्ता वगैरह। नबातात में आम, मकई और गेहूँ इसकी मिसालें हैं। जानदार कुत्ता, साइंसी नाम आपको ध्यान में नज़र आ रहा है, कैन्स फैमिलीज। गाय, बोस टाउट्स, जासुंदी, हिप्कस